Hello students, how are you? I hope you all are well at your home. Today we are going to do our rest of the question of your exercise 10. In our previous video we did question from 1 to 6. Now we are going to do 7 to 10. Okay? So without wasting our time, let's start. Our question number 7. Read the statement carefully. Our statement is, the population of a city was 43,72,820 in 2015, and in 2017 it became 44,02,951. Find the increase in population. Write the number sentence. Statement में क्या दे रखा है कि in 2015 the population of city was 43,72,820. Okay, but in 2017 it increased. Okay, it became 44,02,951. So find the increase in population. We have to find out the increase in population कि कितनी हमारी population है वो बढ़ चुकी है. ठीक है, 2017 में कितनी बढ़ गई है 2015 से. So write this number sentence. We also have to write the number sentence. So how we do it? First, population of city in 2017 is equal to 44,02,951. First we write the population of 2017 because अगर हमें इंक्रीज पॉपुलेशन निकालनी है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो कि पॉपुलेशन हमारी जिस ईयर में ज़्यादा है. ठीक है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन किस ईयर में थी 2017 में. ठीक है, तो वो हम फर्स्ट पहली रो में लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2017, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2015 कि 2015 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, दैट इज 43,72,820. We subtract the population of 2015 from the population of 2017 to find out that how much the population increased. Okay, so increase in population is 30,131. After that we write the number sentence. 44,02,951 minus 43,72,820 is equal to 30,131. Okay, our next question is, India exported ready-made garments worth rupees 95,98,235 in 2 years. If in 1 year the export of ready-made garment was rupees 62,47,689, find the amount of export in the second year. Okay, India ने ready-made garments export किए हैं 2 years में. क्या अमाउंट है उनकी, 95,98,235 एक्सपोर्ट, यानी कि सेल किए हैं ओवरसी या ओवर अब्रॉड. ठीक है, कहीं बाहर रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो बाहर भेजे हैं, बाहर सेल किए हैं. तो उनका प्राइस क्या है, 95,98,235. 2 ईयर्स, 2 सालों में किए हैं. ठीक है, ये 2 ईयर्स का प्राइस दे रखा है. इफ़ इन 1 ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स वॉज रुपीज 62,47,689. अगर एक साल का जो एक्सपोर्ट है वो इतने रुपीज़ का हुआ है, 62,47,689 का हुआ है, तो फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपोर्ट इन सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर में कितना हुआ होगा. ठीक है, 2 ईयर्स का दे रखा है, हमें 1 ईयर का दे रखा है. वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड ईयर. ओके, तो सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, वी सबट्रैक्ट द एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट in 2 years. Okay, how will we do it? Amount of garments exported in 2 years is equal to 95,98,335. After that, amount of garments exported in 1 year, okay, 62,47,689. After subtracting this, the export of 1 year out of export in 2 years, we have our export amount of export in second year. Okay, after solving this we have our amount of export in second year. So solve it yourself.
Ninth question is, Ashok wanted to buy a new car costing rupees 8,28,825. He had rupees 6,79,500 and borrowed the rest from the bank. How much money did he borrow from the bank? Ashok wanted to buy a new car. न्यू कार चाहता था वो लेना, ठीक है, जिसका प्राइस क्या था 8,28,825. सो टोटल कॉस्ट ऑफ कार इज दिस वन. ही हैड, उसके पास कितने थे 6,79,500. उसके पास सिर्फ इतने रुपीस थे. एंड बोरोड द रेस्ट फ्रॉम द बैंक, बाकी के पैसे उसने बैंक से बोरो किए, बैंक से उधार लिया उसने. सो हमें बताना है हाउ मच मनी डिड ही बोरो फ्रॉम द बैंक, बैंक में से उसने कितने पैसे लिए, ठीक है. टू फाइंड आउट द बोरोड मनी, what will we do? We subtract the amount which he had from the cost of car, ठीक है. So total cost of car is equal to 8,28,825. अशोक had, कितने थे अशोक के पास 6,79,500. ओके. मनी borrowed by him, मनी जो उसके द्वारा उधार ली गई, कैसे निकालेंगे हम? टोटल कॉस्ट ऑफ कार से जितने अशोक के पास थे उसको माइनस कर देंगे. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैड द अमाउंट दैट ही बोरो फ्रॉम द बैंक. ओके, ही बोरोड, वट एवर योर आंसर राइट इट हेयर, ही बोरोड रुपीज दिस फ्रॉम द बैंक. लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. इन एन एग्जामिनेशन 4,59,203 students sat for mathematics test which was for 100 marks. एग्जामिनेशन में, एग्जाम में टोटल 4,59,203 स्टूडेंट्स थे मैथमेटिक्स के टेस्ट में जो बैठे थे, जो कि टेस्ट कितने मार्क्स का था 100 मार्क्स का, ठीक है. आगे रीड करते हैं. 89,712 स्टूडेंट्स गॉट 90 एंड अबव मार्क्स. इतने स्टूडेंट्स थे 89,712 आउट ऑफ दिस वन. इतने स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स गॉट किए 90 एंड अबव, 90 और 90 से ज़्यादा, ठीक है. 95,389 स्टूडेंट्स गॉट बिटवीन 79 एंड 90 मार्क्स. और इतने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 79 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है, 80 और 80 से अबव, ठीक है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 80 मार्क्स. कितने स्टूडेंट्स ने 80 से मार्क्स कम लिए. हैव यू गॉट इट? टोटल स्टूडेंट्स इतने थे दिस वन. इतने स्टूडेंट्स ने 90 और 90 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और ये स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने 79 और 90 के बीच में मार्क्स लिए हैं, ठीक है. और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने 80 से लेस लिए हैं मार्क्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 80 मार्क्स. ओके, दिस क्वेश्चन इज लेंथी but it's easy. Okay, so how will we find out the students that got then less than 80 marks? First, we add the students who got 90 and above or between 79 and 90. So students who got 90 and above marks is equal to 89,712. Students who got between 79 and 90, 95,389. Okay, what will we do? We add. Okay, we add both the numbers of students who got 90 and above and who got between 79 and 90. Okay, after adding that, what will we have? Students who got 80 and above marks. तो हमें क्या मिल गया?
जिनके मार्क्स 80 हैं या 80 से अबव हैं, ठीक है। ये वो अमाउंट है जिन बच्चों के 80 और 80 से अबव मार्क्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, स्टूडेंट्स सेट फॉर एग्जामिनेशन के लिए टोटल स्टूडेंट्स कितने बैठे थे? 4,59,203 स्टूडेंट्स हु गॉट 80 एंड अबव मार्क्स, जो हमने अभी निकाले, ठीक है, कि जिन्होंने 80 और अबव मार्क्स लिए हैं, देन वी राइट दैट स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स हु गॉट 80 एंड अबव मार्क्स वो लिखेंगे हम, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स से हम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 80 से अबव मार्क्स लिए हैं उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी हैव अवर स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 80 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास क्या होंगे? जिनके मार्क्स 80 से कम आए हैं, ठीक है। सो सॉल्व इट and find out that how many students got less than 80 marks. I hope that you have understood all the questions. Yet if you have any problem in any question of your exercise 10, then you can ask me. I will explain it again. Okay? Thank you.